آپ نے اپنی پہلی ویڈیو بنانے کے تجربے اور مستقبل کے لیے اپنے بڑے خوابوں کو بہت جوش اور محنت سے بیان کیا ہے۔ یہ قابل تحسین ہے کہ آپ نے بغیر کسی بیرونی مدد صرف ایک موبائل فون اور چند سادہ ایپس کے ذریعے اتنا کچھ تخلیق کیا ہے۔ آپ کی محنت اور خواب، باتیں کچھ ارادے۔ آپ کی ویڈیو کا عنوان باتیں کچھ ارادے بہت مناسب لگتا ہے۔ آپ نے جس طرح اپنی محنت اور لگن کا ذکر کیا ہے کہ ہر مرحلہ کتنا مشکل تھا اور بار بار ایک ہی کام کو کرنا پڑا، یہاں تک کہ کچھ چیزیں 10 بار کرنے کے بعد بھی درست نہیں ہوئیں، یہ آپ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی یہ بات کہ غلطیوں کا امکان فطری ہے بھی حقیقت پسندانہ ہے۔ اینیمیٹڈ فلم کا عظیم خواب۔ آپ کا سب سے بڑا خواب، یعنی اپنی کہانی کو ایک بہت حقیقی قسم کی اینیمیٹڈ فلم میں بدلنا، واقعی متاثر کن ہے۔ جس طرح آپ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ رنگ، چہرے، تاثرات، قد، جسم، سڑکیں، مناظر، دھوپ چھاؤں، گھروں کے ڈیزائن اور گلیاں سب کچھ واضح نظر آئے اور دیکھنے والا خود کو وہاں محسوس کرے، یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ آپ کا یہ دعویذ کہ آپ کی کہانی بہت مضبوط ترین کہانی ہے اور عام ناولوں، ڈراموں، فلموں جیسی نہیں، ان سب سے بہت ہٹ کر یہ تجسس پیدا کرتا ہے۔ آپ اسے ایک ایسی کہانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ خواب کی تعبیر کے لیے آپ کی اپیل۔ آپ نے بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آپ کو IT ماہرین کی ٹیم، کمپیوٹرز، کمرے اور پیڈ پروگرامز پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے آپ نے اپنے ناظرین سے جو اپیل کی ہے وہ بہت سیدھی اور عملی ہے۔ ہر ویڈیو کو لائک کریں، تبصرے کمنٹس کریں، اچھی یا بری، 1-2 لفظ ہی صحیح، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ابتدائی اقساط شاید بورنگ لگ سکتی ہیں، لیکن ناظرین کو غلطی نہیں کرنی چاہیے اور آگے دیکھتے جائیں، کیونکہ کہانی میں ہزاروں موڑ، واقعات، اتفاقات، حادثات، ایکشن، ری ایکشن، سنسنی خیز تھرل، شاکنگ ایڈونچرز ہیں۔ آپ کی اس بات سے مزید تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کرداروں اور کہانی کے موڑ کو سمجھنے کے لیے ہر قسط دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کی یہ کوششیں اور آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے اس بڑے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کا دیا گیا اقتباس ایک دلچسپ اور فکر انگیز کہانی پیش کرتا ہے جس میں مائیکل چریتو نامی شخص کے اندرونی کشمکش اور روحانی سفر کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی 2 اہم خوابوں پر روشنی ڈالتی ہے جو چریتو کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مائیکل چریتو کی تقریر اور اس کا اثر۔ مائیکل چریتو کی تقریر، جس کا موضوع آج کل کے مسلمانوں کو کون سی اچھی اقدار اپنانی چاہیے تھا، منتظمین کے اصرار پر ہوئی، تاہم یہ ایک بے ہنگم اور بے ربط تقریر ثابت ہوئی۔ چریتو کو نہ الفاظ مل رہے تھے اور نہ ہی اس موضوع پر اس کی دسترس تھی۔ اس کی تقریر اس کی اپنی ذہنیت اور کردار کے برعکس تھی، اور حاضرین، خواہ وہ اسٹیج پر بیٹھے مہمان ہوں یا دور سے آئے سامعین، سب نے اس کی خامی کو محسوس کیا۔ اس کے باوجود چریتو نے غیر معمولی اعتماد کے ساتھ تقریر جاری رکھی اور کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، جس کی وجہ شاید اس کی دھاک تھی یا مسلم کمیونٹی کا اس کی موجودگی کو سراہنا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر ایک گمراہ شخص راہ راست پر آ رہا ہے تو یہ ایک اچھا شگون ہے۔ چریتو خود بھی اپنی نادانی کا احساس کر رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اگر اسے آخر میں بلایا جاتا تو وہ دوسرے مقررین کی تقاریر سے کچھ نکات جمع کر لیتا۔ وہ اپنی اس تقریر سے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کے بجائے ایک نادان شخص محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ نیکی کی باتیں کرنا بھول چکا ہو یا کسی نشے کے زیر اثر ہو۔ اس نے تقریر کو مختصر کر دیا۔ پہلا خواب، گریس اور صابن کا استعارہ۔ تقریر کے بعد 2 نعت خوانوں نے نعتیں پڑھیں جن کا چریتو کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اسی دوران اسے ایک خواب آیا۔ وہ خود کو ایک کار ورکشاپ میں مکینک دیکھتا ہے جہاں وہ 10 کاروں کی خرابی دور کرتا ہے، لیکن اس کے کپڑے، ہاتھ، پاؤں، منہ اور سر کے بال گریس اور کالے موبل آئل سے لتھڑ جاتے ہیں۔
उसे लगता है कि दुनिया का कोई साबुन या वॉशिंग पाउडर ये स्याही दूर नहीं कर सकेगा और ये स्याही मरते दम तक इसके वजूद से नहीं मिट सकेगी। इसी दौरान एक बारिश शख्स उसके पास आता है और कहता है कि उसका साबुन एक ही बार में तमाम स्याही दूर नहीं कर सकेगा, लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर करेगा। चरेतु सबसे पहले अपने हाथ धोकर देखता है और उसकी हथेली वाकई साफ हो जाती है, जैसे कभी ग्रेस लगी ही न थी। ताहम उंगलियां बदस्तूर स्याह रहती हैं, जिससे उसे अंदाजा होता है कि साबुन काम तो करता है, लेकिन उसे बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ख्वाब रूहानी पाकीज़गी और गुनाहों से निजात की तरफ इशारा करता है। ग्रेस और मोबाइल गुनाहों की नुमाइंदगी करते हैं और बारिश शख्स का साबुन दीन की तालीमात और नेक आमाल की तरफ इशारा करता है। ख्वाब ये पैगाम देता है कि रूहानी पाकीज़गी एक मुसलसल अमल है और उसे हासिल करने के लिए मुस्तकिल कोशिश दरकार है। दूसरा ख्वाब, बेटे मार्को का खतरा। चरेतु ख्वाबों को बहुत अहमियत देता है। उसके नजदीक कोई ख्वाब बेकार नहीं होता, बल्कि हर ख्वाब मुस्तकबिल करीब या दौर की पेशगोई करता है। इससे कबल इसे एक और ख्वाब भी आया था जिसने उसे बहुत परेशान कर रखा था। वो अपने घर के सामने एक वसीओ अरीज खेत देखता है जहां फसल कट चुकी है और अब सिर्फ एक मैदान है। उसका बेटा मार्को, एक छोटा बच्चा, उस खेत में दाखिल होता है जहां किसान ने कीड़े मार जहर डाल रखा है जो फटकड़ी के टुकड़ों जैसा दिखाई देता है। खेत में हर तरफ कीड़े मकोड़े इस जहर के असर से हलाक पड़े हैं। चरेतु अपने बेटे को वहां जाने से सख्ती से मना करता है, लेकिन मार्को मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ वहां चला जाता है और साथ दोपहर का खाना, जिसमें खुले नमक की शक्ल जहर से मिलती थी, भी ले जाता है। जब चरेतु वहां पहुंचता है तो वो खाना खत्म करके जा चुके होते हैं। इसे एक बर्तन में जहरीली हथकड़ी का टुकड़ा मिलता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या मार्को ने जहर खा लिया है और उसकी तबीयत तो खराब नहीं। ये ख्वाब चरेतु के लिए तशवीश का बायस बनता है। बाद में एक पादरी उसकी ताबीर बताता है कि मुस्तकबिल में मार्को की जिंदगी को तवील अरसे तक खतरात का सामना रहेगा, खास तौर पर दुश्मनों और पुलिस से, और वो चरेतु की नाफरमानी भी करेगा। इस ख्वाब ने चरेतु के दिल का सुकून छीन लिया। ये ख्वाब वालिदैन की अपने बच्चों के लिए फिक्रमंदी और मुस्तकबिल के मुमकिना खतरात की निशानदही करता है। मार्को की नाफरमानी और जहर का इस्तियारा मुस्तकबिल में इसके गलत रास्तों पर चलने और मुमकिना नुकसानात का इशारा देता है। ये कहानी चरेतु के रूहानी और नफ्सियाती सफर को खूबसूरती से बयान करती है, जहां ख्वाब उसकी अंदरूनी हालत और आने वाले वक्त के बारे में रहनुमाई का जरिया बनते हैं। कोने में बैठा चरेतु मुकम्मल खामोश था। उसकी निगाहें कभी सामईन पर पड़ते तो कभी स्टेज पर बराजमान मुख्तलिफ उलमा, असातिज़ा और शहर के सरकर्दा ताजरों पर। वो हर बात को गहराई से जांचने की कोशिश कर रहा था कि इस मौके पर किसकी तकरीर किस मौजू पर और किन अल्फाजों के साथ होनी चाहिए। क्या ये आसान है या मुश्किल, जो मुझसे ना हो सका। इसके जहन में मुसलसल ये सवाल गूंज रहा था कि अब कौन तकरीर करेगा और कैसी। क्या इस तकरीर में मेरे लिए भी कुछ होगा या ये सिर्फ उन्हीं लोगों की दिलचस्पी तक महदूद रहेगी। इसी असना में ऐलान हुआ कि अब जो शख्सियत तशरीफ ला रही हैं वो महज एक सीधे सादे मौलवी नहीं, बल्कि साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं। उनकी खूबी ये है कि वो दीन और दुनिया को बैक वक्त लेकर चलते हैं। अंग्रेजी भी उनकी जहानत और हाजिर दिमागी पर हैरान है। साइंस की तशरीह मजहबी अंदाज में और मजहब की तशरीह साइंसी अंदाज में, यही तो उनकी खूबी है। दोनों पर बुला की महारत रखते हैं। जहां आज भी कुछ मौलाना हजरात ये कहते हैं कि बच्चों को स्कूल न भेजो, क्योंकि स्कूलों में अंग्रेज की तालीम है जो बच्चों के नजरियात बिगाड़ कर उन्हें कुफ्र की तरफ माइल करती है, मजहब से लगाव खत्म करती है और उन्हें सच्चा मुसलमान बनने से रोकती है। बच्चों को सिर्फ मदरसे की तालीम दिलवाओ। वहीं ये हजरत मोहतरम फरमाते हैं कि बच्चों को स्कूल न भेजना भी गुनाह अजीम है, क्योंकि उन्हें आप अकली, शऊरी, मुआशरती और माली तौर पर कमजोर कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब से मुकाबला करने की सलाहियत से महरूम करते हैं, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब से मुकाबला सिर्फ उन्हीं की ज़बान और उन्हीं के अंदाज से और तमाम जदीद साइंस और इससे अखज़ होने वाले नताइज से बाखबरी की बिना पर ही मुमकिन है। वरना आप किसी को कैसे मुसलमान कर सकते हैं? अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते और साइंसी शवाहिद से ही आगाह नहीं, तो आप क्या दलील देंगे? सच में आप इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मगर यहाँ के इन पढ़ लोग एक अक्सरियत का जेवर तालीम से महरूम होने के सबब नहीं जानते। शायद अगली नस्लों को आपकी खामोश मगर सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल खिदमत का इल्म हो और वो सराहें, मगर आज आपको बहुत से मुआशरती और मजहबी हलकों की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना रहता है।
एक तरफ दूसरे मज़ाहिब की तरफ से आपके खिलाफ महाज गर्म रहता है। इस मौके पर आपको अपनों की भरपूर साथ और हिमायत मिलनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से दूसरा महाज मकामी तरफ से भी आपके खिलाफ गर्म रहता है। आए दिन मकामी तौर पर आप पर नया इल्ज़ाम, नई तोहमत, नया बहतान लगता है और यहाँ की अनपढ़ अवाम इन इल्ज़ामात पर बिला तहकीक यकीन भी करते हैं। हतीज़ के आपको मकामी कॉलेज से कभी निकलवाने की कोशिश की जाती है, कभी स्टूडेंट्स में फर्जी खबरें फैलाकर आपके खिलाफ एहतजाज कराया जाता है, कभी आपके साइंस में शामिल मुख्तलिफ साइंसी मज़ामीन का मुख्तलिफ क्लासों से बाइकआउट कराया जाता है, कभी स्टूडेंट से बदतमीज़ी कराई जाती है। एक बार तो चंद स्टूडेंट से बाकायदा हमला कराया गया। इसी तरह कॉलेज से बाहर भी आम आवाम से भी 2-3 बार बदतमीजी कराई गई। मगर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप साइंस को मजहब के साथ मिलाकर देखते हैं और मजहब को साइंस के साथ। तो क्या ये कुफर है? अगर इन पढ़ लोगों की अक्सरियत को आपकी बात की समझ नहीं आती तो ये आपका कसूर है। मगर सलाम है आपकी हिम्मत को कि हजारों बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। मेरा दावीज़ है कि आज की जिल्लत, रुसवाई, इल्ज़ामात और संगीन इल्ज़ामात के बावजूद कल वो नस्ल आएगी जो आपकी खिदमात का इदराक रखती होगी और आपका जिक्र वली औलिया की तरह बहुत मोहतरम अंदाज से लेगी और सुनहरी अल्फाज में आपको याद रखेगी। आपकी हर तकलीफ तारीख की किताब में लिखी जा रही है। आने वाले कल में हर तकलीफ का सिला ज़रूर मिलेगा, भले ही अगर इंसान ना भी दे, मगर खुदाए बुजुर्ग व बरतर की ज़ात तो ज़रूर देगी, क्योंकि आप बेलौस और बिला लालच मुतहर्रिक हैं, एक ज़िंदगी का कर्ज समझकर। बहरहाल तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर मौलाना अजहर नासिर आबादी। वाकई हाज़रीन में कुछ लोगों में हलचल मच गई। बाज़ लोग बच्चों या दोस्तों के साथ तकरीब से बिला कुछ सुने ही चल दिए, बिला तस्दीक किए, बिला जांचे, मगर एक बड़ी अवामी अक्सरियत मौजूद रही। शायद वो मौलाना अजहर के मुतालिक ना कुछ जानते थे, ना कुछ अच्छा बुरा सुना था, क्योंकि वो बहुत मशहूर नहीं हैं। एक अक्सरियत उनके मुतालिक कुछ नहीं जानती। दरअसल इस तकरीब से कब्ल उन्हें माजी में कभी किसी तकरीब में बतौर स्टेज गेस्ट मदऊ नहीं किया गया। आज पहली बार भी सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन इकबाल कसूसी की कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। उनकी मनफी शोहरत के बावजूद इकबाल कसूसी ने इनके ख्यालात और नज़रियात अवाम को सुनाने का मौका मुहैया किया कि अवाम खुद सुने और खुद फैसला करें। और आज यही तकरीब उनकी असल अच्छी बुरी शोहरत का फैसला करेगी और उनका नाम गली गली घर घर तक पहुँचेगा। या तो उन्हें भरपूर अवामी हिमायत और कुव्वत मिल जाएगी और फिर बढ़ती ही रहेगी और माजी के तमाम इल्ज़ामात धुल जाएंगे, या फिर बुरी शोहरत पर लोगों का यकीन पुख्ता हो जाएगा और उनका इस शहर में रहना नामुमकिन हो जाएगा और उन्हें यहाँ से अपना ज़ाती घर रोज़गार छोड़कर जाना पड़ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इस मजमे में हर सोच, हर उम्र, हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। सब उनकी हर बात गौर से सुनेंगे और दिल ही दिल में फ़ैसला करेंगे। उनकी जीत का मतलब साइंस अब मुसलमानों में हराम नहीं रही और मुसलमानों की साइंस से पुरानी दुश्मनी आज से ख़त्म। बहरहाल जब निहायत अदब से मौलाना प्रोफेसर अजहर नासिर आबादी तशरीफ़ लाए, ये उनकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वो पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे, मगर बहुत ही बावकार और पुरअतमाद अंदाज में। हालांकि ऐसा एतमाद तो लोगों को चरेतों में भी नहीं नज़र आया था। उनका एतमाद यूं जाहिर कर रहा था जैसे दिल ही दिल में कह रहे हों, ये मैदान भी मेरा है और आज का मजमून भी मेरा है। फिर वो मुखातिब हुए, बहुत ही मतीन लहजा पर एतमाद ज़बान और सैकड़ों सामीईन के दिल में उतरता हुआ लहजा। मौलाना ने आयत की तिलावत के बाद कहा, मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में 2 लाइनें हैं, एक मजहबी लाइन और एक मसलकी लाइन। सामीन चौंके। मौलाना की आवाज़ में ठहराव था, मगर बात में चुपता हुआ सच। मजहबी लाइन वो है जिस पर तमाम मसालिक मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह की वहदानियत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कूज़त, सच्चाई, अदल, वफ़ादारी। और मसलकी लाइनें वो हैं जिन पर इख्तिलाफ है, हाथ कहाँ बांधने हैं, आमीन कैसे कहनी है, वुज़ू के तफसीली तरीक़े क्या हैं। मौलाना ने नरमी से गर्दन झुकाई, फिर आंखें उठाकर कहा, अफसोस, हमने अल्लाह की दी हुई मजहबी लाइन को पसे पुश्त डाल दिया और अपने अपने मसलक की लाइनों को जंग का मैदान बना दिया। मजमे में खामोशी गहरी हो चुकी थी। कितने लोग उन्हीं मसलकी इख्तिलाफात की वजह से मर गए। किस मसलक का था? इसके पीछे नमाज जायज़ है या नहीं? इसके जनाजे में जाना बिदअत है या सवाब? मौलाना थोड़ी देर रुके और फिर एक मिसाल से बात खोल दी। एक बच्चा 12वीं जमात में कंप्यूटर साइंस रखता है। वो उस्ताद से पूछता है,
सर, कंप्यूटर साइंस की किताब कौन सी लाजमी है? उस्ताद कहता है, बेटा, कंप्यूटर साइंस इख्तियारी है, लाजमी मज़ामीन मैथ और इंग्लिश हैं। अगर चाहो तो उर्दू रख लो। बताओ, वो बच्चा क्या समझेगा कि जिस मजमून के लिए वो आया वही इख्तियारी है? मौलाना की आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई। यही हाल हो चुका है हमारे उलमा का, जिन्होंने मजहब को इख्तियारी बना दिया और अपने मसलकी फ़िरक़ों को लाजमी। नतीजा ये है कि आज सादा मुसलमान बाकी नहीं रहा, सब बटे हुए हैं। मौलाना ने हाथ बुलंद किया। याद रखो, क़यामत के दिन सवाल होगा, क्या नमाज पढ़ी? ये नहीं पूछा जाएगा हनफी के तहत पढ़ी या शाफी के तहत। जिसने भी पढ़ी, जैसे भी पढ़ी, अगर नीयत और खुलूस था, कबूल है। मगर अगर नमाज छोड़ी, इबादत को हंसी में उड़ाया, तो अंजाम सख्त है। और इख्तिताम में मौलाना ने गहरी सांस लेकर आखिरी बात की, हमें मजहबी लाइन पर वापस आना होगा, जो हमें जोड़ती है न कि तोड़ती है। मसलकी फ़िरक़े दिलों की नीयत को न छेड़ें, मजहब की रोशनी को मद्धम न करें, और जो हक कह रहा है वो अगर दूसरे फ़िरक़े का भी हो तो मान लो, क्योंकि हक किसी फ़िरक़े का पाबंद नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का है। तालियां नहीं बजें, क्योंकि ये तकरीर दिल में लगी थी। चरेतू ने खामोशी से सुना और दिल में कहीं किसी ख्याल की लहर जागी।